Good morning, class 9. So, this is the lecture 3 that is related with the unit 3rd, also that is atoms and molecules, right? So, as we are discussing about atoms and molecules, then I have discussed in the last video, I have discussed the two laws with you, the law of constant proportion and the law that is conservation of mass. हमने दो लॉ पढ़े हैं वहाँ पे. After learning those two laws, then we have learned that symbols which are given by the previous scientist. Okay, then हमने वो symbol पढ़े थे. After those symbols, पहले आर्किमिडीज के पढ़े थे, then we have learned about Dalton symbol. Okay, but after that even I have discussed with you that those symbols are not applicable, है ना, because they have given just a structure type of symbols which we can't use for a reaction. So instead of using those symbols, then we have to learn the new terms, new modern symbols which we are using nowadays. Okay, so the modern symbol, this is a lecture 3rd. In the starting of the lecture only, I have written few of the elements with symbol. Okay, there is no need to cram the element, but when you will use them continuously, how will you use? On the daily basis, try to use them, try to make the formulas, okay, which we will learn in this chapter only. So when you will try to make the formula, then easily you will learn these symbols. Okay, if still you will not learn, then you have the only option that you have to cram. Okay, otherwise there is no need to cram these. First of all, you can see I have written the symbols here, right? So while writing the symbols, there are the few things which you have to keep in mind. As we are writing our name, okay, suppose if I have to write any of a name, like मैंने कोई नाम लिखना है, मैं लिख रही हूँ लता, ठीक है, लता लिख लेते हैं, लीज़ा लिख लेते हैं. सपोज आई एम राइटिंग अ नेम लीज़ा, राइट. सो अगर मैं एक नाम लिख रही हूँ जिसका नाम है लीज़ा, तो यहाँ पे देखिए जो इसका आई कांट यूज़ द फुल नेम फॉर अ रिएक्शन, ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल. तो हम क्या करते हैं, जैसे हम वी आर हैविंग अ शॉर्ट नेम, राइट. सो सेम यहाँ पे क्या है, आप कुछ बच्चे बोल देंगे लिज, ठीक है, लाइक दैट. सो when you are representing that in a short form, okay, so that your reaction to be easy, that is known as symbol. Okay, so while writing the symbol, as we are doing in our name, the first letter will be capital, the rest will be small. Okay, now as you can see here, aluminium. Aluminium is ALUMINIUM, aluminium. Now you will use first two letters to represent the symbol. Don't write aluminium like this. Don't write like it. It is wrong. Okay, you have to write the aluminium like a capital letter. First letter will be capital and second will be small while writing the symbol. Don't write even like this also, both capital. This is wrong. Okay, so while writing the symbol, you have to keep in mind that the first letter will be capital, the next will be small. Okay, ये दोनों ही गलत हैं. So this is the actual symbol. Okay, next we are having argon. Again, the symbol is AR. Okay, next is boron. So capital B is used. It is depend upon the, it is already given. Okay बेटा, कुछ में हम single letter use करते हैं, like here. In case of boron, we are using just B, and in some cases we are using two symbols, right? So the next one we are having calcium. Okay, in case of calcium, you can see what we are having, that is Ca. C is capital, A is small. Carbon, only C, that will be capital. Chlorine, capital C, small l. Cobalt, capital C, small O. Copper, capital C, small u. Okay, fluorine, capital F only. गोल्ड, अब देखिए गोल्ड में जो है इट्स नेम इज गोल्ड बट द सिंबल इज ए यू. ओके, नोटिस करें यहाँ पे इट्स सिंबल इज ए कैपिटल ए स्मॉल यू. एंड इन केस ऑफ हाइड्रोजन इट इज एच, आयोडीन आई. एंड अगेन यहाँ पे नोट करें, देखिए इन केस ऑफ आयरन द सिंबल इज एफ ई. अब ये क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगी. इन केस ऑफ गोल्ड इट इज़ ए यू, इट इज़ एफ ई. ये कुछ स्पेशल हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इसी में गलतियां करते हैं. नेक्स्ट वन वी आर हैविंग लेड, दैट इज़ पी बी. एंड मैग्नीशियम वी आर हैविंग एम जी. ओके, लेड में भी देखिए
it is Pb. Next one we are having that is neon, Ne, नाइट्रोजन का N लिया है, ऑक्सीजन का O लिया है, पोटाशियम अगेन K, पोटाशियम का K लिया है, ठीक है। अब सिलिकॉन में Si, सिल्वर में देखिए Ag, ओके फिर सिल्वर में आ गया, सोडियम में भी देखिए डिफरेंट है Na, सल्फर इज एस, जिंक में Zn लिया है, आई स्किप किया है बीच में से, हीलियम में He लिया है, लिथियम में Li लिया है, बेरिलियम में Be लिया है और फॉस्फोरस में P। समटाइम्स स्टूडेंट्स डू मिस्टेक, दे मिक्स फॉस्फोरस विद पोटाशियम, पोटाशियम इज हैविंग सिंबल K, फॉस्फोरस इज हैविंग सिंबल P, okay, don't mix it। and zinc में देखिए it is Zn, I is skipped over here। now your question could be there that इनमें हमने why we have not used in case of potassium P, why PO or nothing anything else is not used, okay beta, so your question could be there। even case of sodium also Na, why Na is there। so what is there, जो symbol है ना, जो ये नाम है, okay, ये these are the names of the elements but their symbols some are derived from their name, जैसे ये है इसके नाम से ही derive किए गए, some are also these are also derived from their name but not this name, that could be a Greek name, okay, that could be a Greek name हो सकता है, ओके, लैटिन नेम, या फिर और हम कह सकते हैं लैटिन, ग्रीक, ऐसे कुछ जो जर्मन बोल सकते हो, उन लैंग्वेज में दो नेम्स ऑफ दीज एलिमेंट जो होंगे उनमें से क्या किया गया है, इनका सिंबल डिराइव किया गया है। दैट्स वाई दीज सिंबल्स आर लाइक दिस, कि सिल्वर का SiLVER लिखते हैं लेकिन उसका सिंबल Ag होता है, सोडियम हम SODIUM लिखते हैं बट इट सिंबल इज Na, क्योंकि इसका जो नेम है ग्रीक में दैट इज नेट्रियम, okay, that is NaTrium, natrium, that's why Na is used here, okay। सेम जब पोटाशियम की बात करते हैं तो इसका नाम होता है केलियम, KALIUM, so that's why इसका ग्रीक वर्ड उठाया गया है यहाँ पे। so यहाँ पे सिंबल्स क्या है देखिए, अब जब नाम भी दिए गए ना, एलिमेंट का नाम रखा गया किसी भी एलिमेंट का, तो ये क्यों कैसे रखा गया, किस प्लेस पे वो डिस्कवर हुआ, ठीक है, उसका प्लेस की बेसिस पे, उसकी मतलब किसने वो डिस्कवर किया, जब उनकी डिस्कवरी की बेस पे ही उनके नाम रखे गए, ठीक है। अब उन्हीं नाम से सिंबल बनाए गए, एंड इन सम केसेस देयर ग्रीक नेम, जर्मन नेम और लैटिन नेम, उनके नाम से उनके सिंबल रखे गए। सो दैट्स वाई इवन गोल्ड इज हैविंग अ सिंबल AU, इवन आयरन, सी आयरन इज Fe, इसका नाम जो होता है फेरेट, FERRATE, फेरेट होता है, दैट्स वाई व्हाट इज यूज्ड, Fe is used here, okay। so these are the symbols which you have to keep in mind, don't forget to make the note side by side, okay। so this is about the lecture 3। अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी मैंने आपको क्या समझाया, एक चीज़ तो आपने ये सिंबल मैंने समझाए, आई हैव टोल्ड यू दैट सम आर फ्रॉम देयर नेम एंड सम आर फ्रॉम देयर लैटिन नेम, डोंट मिक्स लैटिन नेम और इस नेम से दो तरह से हमें सिंबल मिलेंगे, ठीक है, कुछ के इससे डिराइव किए और कुछ के लैटिन नेम और ग्रीक नेम और जर्मन नेम से डिराइव किए गए। अनदर थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग द सिंबल, द फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, द नेक्स्ट विल बी स्मॉल, ओके, एज आई टोल्ड यू, मैंने ये एग्जाम्पल देके भी आपको समझाया, ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। स्टूडेंट्स डू मिस्टेक, दे राइट कैल्शियम लाइक दिस, ऐसे लिखा जाता है कैल्शियम, ये ऐसे लिखते हैं कैल्शियम Ca, दिस इज रॉन्ग, ओके, डोंट राइट लाइक दिस, इट इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक। इवन बोरन में कैपिटल B, कैल्शियम में Ca, कार्बन में C, ठीक है, तो सिम्बल्स शुड बी कीप इन माइंड वाइल, बिकॉज इसी से हमने आगे फार्मूलाज बनाने हैं। अगर आपको सिंबल क्लियर होंगे देन ओनली यू विल लर्न द फार्मूलाज, ओके। अब हम नेक्स्ट एक टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज अ एटॉमिक मास यूनिट। सो द नेक्स्ट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। Okay, this is our next topic, atomic mass unit. So while learning this topic, first of all you should be clear what is atomic mass. Now what is there, Dalton, okay, Dalton and his co-workers, Dalton and his co-worker, they try to find out the mass of the atoms, okay, mass of each atom, like that of carbon, oxygen, nitrogen,
iron. Okay, so they want to know the mass of each atom, because with the help of the atomic mass only, मतलब atom के mass की बात करें, atomic mass means mass of atom. Okay, so with the help of atomic mass only what could be there, कहते जैसे ही atomic mass का पता चल जाएगा तो उसी की बेसिस पे उन्होंने क्या दिया था, जो हमने सेकेंड लॉ पढ़ा, दैट इज़ अ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दैट इज़ बेस्ड ऑन द मास, है ना, उसमें यही था। वो क्या कहते हैं कि द एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ कांस्टेंट रेशियो, कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास। You can justify that law only if you know the atomic mass. Atomic mass are what? For the each element, as we have discussed the symbols. So symbols में हमने अभी मैंने बात की, मैंने बोला एल्यूमिनियम है या नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, अब तुम्हें उसका अटोमिक नंबर और मास नंबर वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जब आप अटोमिक नंबर या मास नंबर की बात करते हैं, सो व्हाट कुड बी देयर, कहते वो कहाँ से आया, कैसे पता चला हमें कि इसका मास इतना होगा, कैसे फाइंड आउट किया। ठीक है, पहले तो कोई यूनिट्स नहीं होते थे। ओके, जब ये रिसर्च चल रही थी तब तो कोई ऐसे यूनिट्स नहीं होते थे। सो व्हाट इज देयर, व्हाट दे हैव टेकन, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टेकन अ एलिमेंट दैट इज एटम, दैट इज ऑक्सीजन। ओके, उन्होंने एक एटम सिलेक्ट कर लिया, ऑक्सीजन। दे हैव टेकन इट्स 16th पार्ट, इसको इमेजिन कर लिया। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या ऑक्सीजन क्या लिया, आफ्टर सिलेक्टिंग ऑक्सीजन दे हैव जस्ट ऑब्जर्व्ड, जैसे ऑब्जर्वेशन कह लो या रिसर्च के बेसिस पे कह लो, दे रीच टू द कंक्लूजन दैट ऑक्सीजन इज हैविंग अ 16 अटोमिक मास यूनिट, दैट मीन्स जो ऑक्सीजन है उसका मास कितना माना गया, 16 अटोमिक मास। Now if you know the mass of one element, okay, you can calculate the mass of other elements. How? Like यहाँ पे ऑक्सीजन का आपको मास पता चल गया, कहते अब ऑक्सीजन क्या है, इट रिएक्ट विद डिफरेंट एटम्स, ये और एटम्स के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, water, like this. So if you know the mass of oxygen, okay, then you can easily calculate the mass of carbon here. How? By comparing it with oxygen. ठीक है, कि कैसे किया गया, कि कहते हैं इसको क्या किया गया, वेट किया गया, अगर 16 इसका मास ले लिया गया, अब बाकियों का क्या किया गया, जैसे हम करते हैं ना, जैसे किसकी बात करें, अ वेंडर इज देयर हु सेल्स वेजिटेबल, how he calculate the mass, he is having some stones by which he just compare the mass of the vegetable with the mass of the stones, ऐसे ही करता है वो, स्टोन उसने रखे होते हैं, उसके साथ ही आजकल हमारे पास इलेक्ट्रिकल आ गए हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल वेज आ गए हैं, सो उसमें भी क्या होता है, दे जस्ट कैलकुलेट द मास, ओके, वो उसका वेट मेजर करते हैं, कैसे उसको कंपेयर करते हैं विद द स्टोन्स, ऐसे ही होता है। सो लाइक दिस, इफ़ यू नो द मास ऑफ ऑक्सीजन व्हाट कुड बी देयर, विद द हेल्प ऑफ दिस आप क्या कर सकते हो, इसको एक साइड में रखा गया, ठीक है, और सेकेंड साइड क्या किया गया, मास ऑफ अदर एलिमेंट्स इसके साथ कंपेयर करके कैलकुलेट किया गया, मतलब इसका मास माना गया 16, तो ऑक्सीजन का 1/16 पार्ट लिया गया, दैट मीन्स 1/16 मीन्स इसका 16th पार्ट, ठीक है, लिया गया, एंड दैट उसको फिर धीरे 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 इधर डाला गया, जितने टाइम्स वो डाला गया उतना उसका मास सामने वाले का काउंट कर लिया गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन ही क्यों सिलेक्ट किया गया, बिकॉज एट दैट टाइम इट वॉज एज्यूम्ड दैट ऑक्सीजन एलिमेंट इज दैट विच रिएक्ट मोर विद द अदर एलिमेंट्स। ओके, बट आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन, अब कार्बन का मास तो ऑक्सीजन की हेल्प से निकाल लिया गया था, है ना, इट इज़ कैलकुलेटेड टू बी अ 12 अटोमिक मास यूनिट, मतलब कार्बन जो था, अगर आपने जो 1/16 मतलब ऑक्सीजन के 16 है, 16 का 1/16 एक बार डाला, 2 टाइम्स डाला, 3 टाइम, 4 टाइम, तो 12 टाइम डाला, तब जो है कार्बन और ऑक्सीजन का मास इक्वल आया, तो ये माना गया जो कार्बन का एटॉमिक मास है दैट इज 12। ऐसे ही नाइट्रोजन का और कुछ एलिमेंट्स और का निकाला गया, राइट। बट व्हाट इज देन
कहते अब आफ्टर सम टाइम और रिसर्च की गई, तो आफ्टर दैट उन्होंने ऑक्सीजन को निगलेक्ट कर दिया, देन दे स्टार्ट काउंटिंग एज अ कार्बन, कार्बन का 12, ठीक है, कार्बन विद 12 एटॉमिक मास। देखिए हमारे पास दो तरह की कार्बन होती हैं, हमेशा याद रखना, एक कार्बन विद 12 एटॉमिक नंबर, अनदर कार्बन विद वन कार्बन विद 12 एटॉमिक मास, अनदर कार्बन इज 14। लेकिन हम जो पढ़ते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, वो स्पेशली हम 12 पढ़ते हैं, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इन नेचर एज कम्पेयर टू कार्बन 14। अब इनको जो है, एक आपकी बुक में वर्ड यूज होगा वहाँ पे आइसोटोप, वहाँ पे एक वर्ड आएगा आइसोटोप। अब आइसोटोप क्या होता है, जैसे कार्बन है, कार्बन एटॉमिक नंबर इज 16, वन कार्बन इज हैविंग मास 12, again the carbon atomic number is 16 but the mass is 14. So the atoms which are having same atomic number, okay, same atomic number but different mass number, those are known as isotope. तो ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट है जिनके आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन का भी होता है, लेकिन जो अबंडेंट मतलब ज़्यादा प्रेजेंट होता है नेचर में, हम वही एलिमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट कहते हैं कार्बन 12 सिलेक्ट किया गया, पहले ऑक्सीजन 16 सिलेक्ट किया गया था, उसके साथ बहुत सारे एलिमेंट का ऐसे कंपेयर कर करके मास निकाला गया। आफ्टर दैट व्हाट इज देयर, कार्बन 12 इज सिलेक्टेड। So when carbon 12 is selected, then what is there, after selecting carbon 12, इसके साथ क्या किया गया, इसको कंपेयर करके सब मोस्टली लॉट ऑफ एलिमेंट का जो है मास कैलकुलेट किया गया। क्या, कौन सा मास, एटॉमिक मास, ठीक है, कार्बन 12 के साथ कैलकुलेट करके। दैट्स वाई नाउ अ डेज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, ओके, वो क्या है, आई एम गोइंग टू डिक्टेट, सो प्लीज लर्न इट केयरफुली। It is the one atomic mass unit means the mass of one atom, okay, the one atomic mass unit, that is the mass of one atom, that is equal to, okay, that is equal to the 1/12 of 1/12 of carbon 12 atom, ओके, वन एटॉमिक मास यूनिट अब कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, दैट इज 1/1/12 मीन्स 1/12 of carbon 12 atom. So this is one atomic mass unit. So by using this atomic mass unit, you can calculate the mass of any other element, ठीक है। In your book one more example is taken कि हमारे पास watermelon है बेटा, ठीक है, इसी को explain करने के लिए, that कि अगर सपोज करो कि जो पर्सन है दैट इज सेलिंग वेजिटेबल्स, राइट, दैट वेंडर डजेंट हैव द दैट 1 kg और 2 kg और ½ kg स्टोन इज़ नॉट देयर, मान लो कि वो अवेलेबल ही नहीं है। सो एट दैट टाइम हाउ ही मेजर द वेट, ओके, वो कैसे मेजर करता है, कहते वो एक उसने जस्ट एज्यूम कर लिया, जैसे हमने ऑक्सीजन पहले एज्यूम की थी, फिर हमने कार्बन, ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन को कैलकुलेट कर लिया, इसका एग्जैक्ट वेट हमने पता चल गया, तो हमने बाकियों का इसके साथ कैलकुलेट किया। सो ऐसे ही क्या किया, उसने एक वाटरमेलन लिया, ठीक है, उस वाटरमेलन को उसने मान लिया कि वाटरमेलन इसको कार्बन को रिलेट करके बोला गया है, दैट एज्यूम दैट देयर इज अ वाटरमेलन दैट इज इक्वल्स टू 12 यूनिट मास, ठीक है, उसका जो एटॉमिक मास है, कहते हैं ऐसा मान लिया उसने, वेंडर ने, कि उसका मास कितना 12 यूनिट है, ठीक है। सो इट इज़ कट इक्वली इंटू 12 पीसेस, ओके, इसको 12 पीस में इक्वली कट किया गया। आफ्टर दैट अगर इफ़ यू वांट टू सेल एनी ऑफ द वेजिटेबल, देन व्हाट ही विल डू, ही विल जस्ट टेक 1 पीस ऑफ इट, ठीक है, दैट इज काउंटेड एज अ 1 एटॉमिक मास यूनिट, एंड देन जो भी वेजिटेबल है उसके कंपेरेबली उसको क्या करेगा, सेल करेगा। सो दिस इज नोन एज अ एटॉमिक मास यूनिट, ओके। सो आप इसका थ्योरी ज़रूर पढ़ना, अगर आपको फिर भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी, प्लीज़, यू आर फ्री टू आस्क।
देयर इज़ अ नो रिस्ट्रिक्शंस कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते या आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से नहीं पूछ सकते। थैंक यू वेरी वेरी मच बेटे।